Assalamu alaikum dear students and viewers. Hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing presentation of data, and in presentation of data we are discussing frequency diagrams. और frequency diagrams में हमने previous lecture में histogram discuss किया और histogram of equal class interval को कैसे हम draw करते हैं, how a data or a frequency distribution of unequal class intervals is presented in the form of a histogram. We have discussed it yesterday. चलिए आज हम हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स की तरफ आते हैं। देखिए हिस्टोग्राम्स ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स वो हिस्टोग्राम होते हैं विच आर बेस्ड ऑन द डेटा विद अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। यहाँ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होते हैं। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल एज सच व्हेन द डेटा ऑफ क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, तो ऐसी सूरत में विड्थ ऑफ रेक्टेंगल्स वुड बी डिफरेंट। The width of rectangles would increase or decrease depending upon the increase or decrease in the size of the class intervals, right? तो ऐसी डेटा को प्रेजेंट करने से पहले इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स और फ्रीक्वेंसीज ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल्स को एडजस्ट किया जाता है। कैसे एडजस्ट किया जाता है? फर्स्ट वी नोट अ क्लास ऑफ द स्मॉलेस्ट इंटरवल। स्मॉलेस्ट क्लास को हम पहले नोट करते हैं। इफ द साइज ऑफ वन क्लास इंटरवल इज ट्वाइस ऑफ द smallest in the series, frequency of that class is divided by 2. Likewise, if the size of the class interval is 3 times the size of the smallest class, then it's divided by 3 and so on. तो यहाँ हमें एडजस्टमेंट फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? इट इज़ द इंटरवल ऑफ द क्लास कंसर्न डिवाइड बाय द लोवेस्ट क्लास इंटरवल। इसे एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं। हर सीरीज़ में हमें ये निकालना पड़ता है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सपोज हम मान लें कि हमारे पास सबसे छोटा जो क्लास है इट्स 5 to 10 एंड द क्लास विद लार्जेस्ट इंटरवल इज 20 to 10 to 20 10 to 20 and the frequency of which is 12. Here the class interval of the bigger class is 10. यहाँ 10 क्लास इंटरवल है और यहाँ 5 है। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमारा जो कंसर्न्ड क्लास होगा, द बिगर क्लास इंटरवल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट्स 10 to 15 and 15 to 20, 10 to 15 and 15 to 20, then we reach 10 to 20 gap, and accordingly the frequency of the bigger class would be 12 divided by 2, it will be 6. The divider 2 in this case is called adjustment factor. जो 2 डिवाइडर है ये एडजस्टमेंट फैक्टर है हमारा। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टेक एन इलस्ट्रेशन। देखिए हमारे पास एक डेटा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मिनिमम क्लास इंटरवल इज 5 हियर, अदर क्लास इंटरवल्स आर 10, 20. Hence before drawing the graph frequency density should be calculated. इस सूरत में हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को कैलकुलेट करना है। ये कैसे हम करेंगे? इट कुड बी डन बाय डिवाइडिंग द frequencies by the adjustment factor. How do we do it? First let us see the adjustment factor. Here the lowest class is 5 and the concerned class is 5. 5 divided by 5 is 1. Here again it's 5 by 5, 1. Again 5 by 5 is 1. Again 5 by 5 is 1. Right? But here जो हमारी गैप है, इंटरवल है, इट्स 10. 10 by 5 is 2. थर्ड में आइए, it's 20 by 5 because this is the concerned class, this is the lowest class, it's 4, and again here 20 by 5 is 4. अब हमें frequency density देखनी है. What we have to do here, we have to divide the frequency, that is 7, by the adjustment factor, that's 1. 7 divided by 1 is 1. Again 10 divided by 1, again 27 divided by 1, again 15,
by 1 is 15. Here 12 by 2 is 6. 12 by 4 is 3. Then 8 by 4 is 2. This is the adjustment factor. And this adjustment factor is to be plotted on the histogram. यही हमने हिस्टोग्राम में प्लॉट करना है. वैसे तो हम फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करते हैं, बट यहाँ अनइक्वल क्लासेस है, इसलिए एडजस्ट करने के बाद हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को प्लॉट करना है. तो इसके लिए here we have taken the histogram of the data, the table. देखिए इस एक्सिस पे हम वेजेस लेते हैं और ऑन एक्स वाई एक्सिस वी टेक द नंबर ऑफ वर्कर्स, राइट. wages between 10 to 15 कितने वर्कर्स के लिए है? फॉर 7. एंड फॉर 15 to 20 is for 10 workers. That's between 15 to 20 is for 10 workers. And its highest 27. For 27 workers the wages range between 20 to 25. इसी तरह नेक्स्ट में आइए. तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, you know it already. Now why the width is double? Here because देखिए यहाँ हमने दो फ्रेम्स एक ही में इंक्लूड किए. क्यों किए हैं? बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट फैक्टर. द वेजेस बिटवीन 30 to 40 go for 6 workers. And here the adjustment factor is 2. That is why दो डिस्ट्रीब्यूशन आए. 20 to 40 को दो हिस्सों में बांट के 20 to 30 to 35 and 35 to 40. इसी तरह इसमें आइए, यहाँ इट्स फॉर 4. Here it takes 4 distribution is of 40 to 45, 45 to 50, 55 to 60. So for this group, that's between 40 to 60, जो number of workers है, it is 3. फिर next में आइए, the wages between 60 to 80 range or has frequency simply of 2. It has frequency of 2. गर्चे 8 थी. In the table it was 8, but एडजस्टमेंट डेंसिटी देखने के बाद ये 2 आएगी हर हिस्से में, क्योंकि यहाँ 4 पार्ट्स है. 1 2 3 4. इट्स द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन 60 to 80. तो इसमें हमारे हिसाब से जो असली रेंज है इसका, दैट्स 10 to 5. दैट्स जो हम इसकी स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी दैट इज 5. तो 5 के हिसाब से 4 पार्ट्स इसमें आएंगे, इसलिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ 2 होगी. अदरवाइज इट इज 8 फॉर द होल. फ्रॉम दिस टू 60 to 80 इट इज 8, एंड फ्रॉम 40 to 60 इट इज 12. राइट, समझ गए आप? दिस इज हाउ वी ड्रा अ हिस्टोग्राम ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल. तो यहां हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करते हैं बाय द एडजस्टमेंट फैक्टर. एडजस्टमेंट फैक्टर आप जान गए, क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास डिवाइड बाय द क्लास इंटरवल ऑफ द कंसर्न्ड क्लास डिवाइड बाय लोवेस्ट क्लास इंटरवल. और उस बुनियाद पे हमारा जो हिस्टोग्राम होगा इट विल बी ऑफ दिस शेप. राइट, I think you have understood it. In case you find any problem,
पहले आप बुक कंसल्ट कीजिए, देखिए अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, कंसल्ट मी, व्हाट्सएप मी, SMS मी, कॉल मी, आई एम ऑलवेज एट योर डिस्पोजल। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।